This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। हमारे साथ आज बहुत ही अहम मसले पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इंडिया से, मुंबई से ताल्लुक है इनका, सानिया पटेल ब्लॉगर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सानिया, क्या हाल है, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम रक्षिता जी, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। इट्स एन ऑनर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम्म। सानिया, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चले। माशाल्लाह, आप क्या करने जा रही हैं, इतना बड़ा यस इवेंट है। पहले कुछ यस अपने बारे में बताइए, इसके जी बाद जी हम जरूर। आपके इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो आई एम सानिया पटेल। आई हैव अ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम जिसका नाम है शोर्स एंड चोर्स। इट्स without an identity, so you won't see my face anywhere, because I'm passionate about traveling, but I'm also passionate about keeping my private life private. And yes, I'm a mother of two. तो हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इधर मुंबई में, इन association with AFSC International, which is an American institution. It's like an NGO. They are verified to aid Gaza. So they are doing excellent work at the border. उधर हैंड कुक मील्स प्रिपेयर करके, मेडिकल एड प्रिपेयर करके, बिकॉज राफा बॉर्डर को ट्रक्स के लिए ब्लॉक कर दिए, राइट? सो उधर मील्स और एड ये लोग, they are handing out all that to the pedestrians जो border पे आके, they are taking the aid. They're risking their lives and entering a war zone, the volunteers from AFSC. So a friend of mine, Meloni Kothari, she's a Gujarati Jain, also from Mumbai. She is very passionate about Palestine, passionate to another level. So honestly, I would be pretending if I would say कि मुझे बहुत knowledge है ये चीज के बारे में, but you can look away, but you can't deny that Palestine has been under occupation for the last 75 years. It's as good as an open air prison. लेकिन जो last 5 months से जो mass killing और genocide और bombings चल रही है, they are literally bulldozing people. There is no facility, medical aid, all of that. मतलब वो on a humanitarian ground, it is, how do you look away from something like that? And that's when I got roped into just a few months back, and I just feel sad कि पहले मुझे इस चीज के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी, but I know of it today, and I can be instrumental with this. So once my friend got in touch with AFSC, she's been reaching out to them since the past 5 months, and only last Wednesday night, they reached out and they said that you can have this kite flying event जो उन लोग भी कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में on Saturday 30th. They are having the same event over there, and we will support it. And any aid that you want to provide, we'll give you the QR codes. तो जो भी donations जिनको भी करना है वो direct हो जाएगी सीधा वो channel से, because a lot of people feel, including myself, that we want to help, but how? What is a verified source to kind of make these donations? And how do you know whether these donations are actually making a difference? So I think being associated with AFAC is a really big deal for us. And that's why we are having this kite flying event. It's just a peaceful kite flying protest. It's at Radio Club Pier at Kolaba, which is a beautiful location. It's in the middle of the water by the Gateway of India. And inshallah, we will color the Indian skies with the Palestinian colors. And hopefully that is the taste of freedom that the Palestinians will get, hopefully. And that is just our little bit that we can do. In this way, we can get everyone together and help them make donations. It's not just a protest. तो सब आएंगे मिलेंगे, जो भी donations कर सकते हैं, 5 rupees Indian, 50 rupees, 5 lakhs, it's up to you. They can make the donations, and hopefully inshallah, स्पेशली नाउ जब यूएन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है सीज फायर के लिए, सो ये अभी लाइक नाउ इज द टाइम टू एम्पलीफाई आवर वॉइसेस एंड just support this cause to demand a ceasefire. So I'm really glad that we are doing this now, and hopefully the impact makes a difference.
व्हाट डू यू थिंक सानिया, के व्हाई आर यू सपोर्टिंग दिस, और आपने क्यों सोचा, क्या ऐसा आपको लगा? क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे सामने जो हम देखते हैं, तो इसका मतलब क्यों आपने ज्वाइन किया इसको? लाइक आई सेड, मैं बहुत ज्यादा अनअवेयर थी ये चीज के बारे में, बट इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे अभी फिलहाल, लाइक सम मंथ्स बैक, तो मैं जब पैलेस्टाइन के बारे में पोस्ट करती थी, आई एम विथ यू, इंस्टाग्राम शैडो बैंड मी। शैडो बैंड सिंपली मीन्स कि आपकी जो व्यूअरशिप है वो 5% कर देते हैं। सो योर पोस्ट एंड योर रील्स दूसरों तक तो दूर, आपके फॉलोअर्स तक भी नहीं पहुंचता है। सो आई स्टॉप पोस्टिंग, आई रिड्यूस्ड पोस्टिंग, एंड देन आई सॉ माई फ्रेंड मिलोनी, हु इज अ गुजराती, और वो प्योरली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये चीज इतना प्रो पैशनेटली कर रही थी। एंड समवेयर आई रियलाइज दैट yes, they are humans, but it is oppressions on the Muslims. And as a fellow Muslim, it should pain everybody कि ये चीज जो हो रही है इसमें, if you can just be a small part in contributing and helping somebody who's in pain, who don't have access to food, they're starving to death, to medical facilities, अगर थोड़ा सा भी अपन उसमें help कर सकते हैं, so then I think it's that was what pushed me to be a part of this. And alhamdulillah, I already had a platform, so that just kind of facilitated this. वो easy हो गया मेरे लिए ये चीज करना कि already मेरी 29,000 followers की है strength on Instagram. And alhamdulillah, since the time we have posted, we have got an immense response from all parts of India and the world. We are at 68,000 views. We have over 1,800 shares. So without any prominent faces supporting us. So alhamdulillah, I'm really glad that I did what I did. So all together, are they coming with you in this event, और कौन-कौन Yes. सपोर्ट कर रहा है इसको? तो co-organizers मेरे साथ मेरी फ्रेंड है मिलोनी कोठारी, obviously collaboration with AFSC for donations, for donation channels. But उसके अलावा alhamdulillah, we have got so much support from especially our Maiman community. It is overwhelming to me, especially even the GMO reaching out for this. Matlab, I feel like it is such an honor, and it gives me so much pride that I did something making my community proud of me. So, alhamdulillah, I'm really happy, but we are getting a lot of non-Muslim support as well. We have people from all religions and castes that are coming forward to attend this event. So this is not a communal event. We want to say that this is a humanitarian event, and alhamdulillah, we have got a lot of support for the same. तो एज वी सी, इतना ज्यादा हमारा जो प्रॉब्लम्स है हमारे मुस्लिम्स को, और आप भी देख रहे हो इस्लामिक कंट्रीज का और सबका, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है चल रहा है, सब जानते हैं, सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो आप कितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको, क्या क्या हर्डल्स आई आपको, या अभी भी आपको फेस करना पड़ रहा है कुछ? हर्डल था, वेयर आर वी गोइंग टू होस्ट दिस इवेंट, क्योंकि कोई भी पब्लिक स्पेस अगर हम लोग को यूज करनी है मुंबई में, नॉर्मली प्रोटेस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट हैपन इन पब्लिक स्पेसेस, और अगर मुझे अगर ये चीज करनी थी तो सिर्फ मेरी BMC परमिशन, which is the Municipal Corporation of Mumbai, and my police permission was going to take such a long time. That's why we privately booked Radio Club, which is the Bombay Presidency Club of Mumbai, and we had to book that. And even after that, getting police permission was a whole other deal, because इस सब चीज के लिए टाइम लगता है, पुलिस प्रोसेसेस स्लो है, BMC प्रोसेसेस स्लो है. तो आई थिंक फॉर मी दैट वाज माय बिगेस्ट हर्डल, एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन द क्लब वाज लाइक, हम लोग आपको नहीं करने दे सक रहे हैं बिकॉज हम लोग को अभी तक वेरिफिकेशन पुलिस से नहीं आया है. तो वो, इवन दो वी वर प्रमोटिंग इट ऑन सोशल मीडिया, वो समवेयर द बैक ऑफ माय हेड it was disturbing me that, oh, the verification hasn't come yet, the permits and the approvals are not in place, and what if they suddenly say कि ये आपको हम नहीं करने देंगे. तो I think that has been my biggest hurdle. आप क्या डोनेशन के हवाले से बात की जाए तो कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ हम डोनेट करें? क्या लोग छुप के कर रहे हैं या सबके सामने दे रहे हैं? कुछ किस तरह के मामला है डोनेशन के?
So honestly, इससे पहले मुझे इतनी आइडिया ही नहीं थी. Like I said, I have been unaware and I feel regretful about the same. But at least now, जिन जिन को भी मैंने just word of mouth से बोला है that we have open donation channels straight to AFSC and this is the information and you can see कि लोग ये काम कर रहे हैं. Like everything is like crystal clear on their channels. It's black and white. Everybody has been so forthcoming and they're like, अरे हम इतना donate करेंगे. Can I do cash? Can I do check? What is the best mode of payment that you're like accepting? And so I just feel कि I was not in fact expecting कि इतना for donations. So yeah, that has been great. The donation response also. कुछ आगे के कुछ और प्लान है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट पैलेस्टाइन के आप और क्या इसके लिए कर सकते हैं डोनेशन के अलावा? क्योंकि हमारा आवाज उठाना मीडिया पे या इस तरह की कोई बात करना तो थोड़ा सा देख लें, कर नहीं सकते हम, जैसा कि हम That's देखते हैं, ठीक है ना? तो इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? बहुत से लोग ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? मैं ऑनेस्टली जो 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 मेरे साथ हुआ है वो मैं बोल रही हूँ. जब ये अक्टूबर से जो अटैक्स, जो बहुत ही ज्यादा मॉर्बिड वे में ये लोग अटैक स्टार्ट किए एंड इट्स बिन अ जेनोसाइड. दे आर लिटरली killing innocent children and people on live television because सब कुछ सोशल मीडिया पे था सामने और वो सबको दिख रहा था. तो जब ये होने लगा तब इनफैक्ट आई टुक इंटरेस्ट एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट इट. एंड व्हेन आई डिड on my own page, I noticed an instant shadow ban, which is my viewership went down to almost 20% of what it was. और जितना मैं ज्यादा पोस्ट कर रही थी, जितना मैं ज्यादा रीपोस्ट कर रही थी, उतना ज्यादा मुझे ये चीज ज्यादा हो रहा था. द व्यूअरशिप वाज गोइंग बैक टू वर्स. एंड एट सम पॉइंट, फॉर माय ओन selfish reasons, if I can say, not necessarily selfish, but yeah, for my viewership of my channel, I did stop posting and I limited my posting. So what you're saying is absolutely, voice age about Palestine comes with its own baggage. So it is difficult. If you want to voice it, it is very difficult. And now that I'm doing it on a public platform, I know that this is have worst effects. जो मैं ये इतना प्रमोट कर रही हूँ ये इवेंट को, इसके बाद जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा and then I go back to my regular programming posting, I may see the worst downfall in my viewership of all times. But I feel that if I go down, at least I'm going down with dignity and with a humble heart, and jo humanitarian grounds pe we are doing this. I hope whatever I'm doing, me, my friend and me, I hope it just reaches the right people, and even later on, inshallah, I am going to try and stay active with this cause. मैं खुद भी कहना चाहती हूँ कि हम आपको फुली सपोर्ट करते हैं और आईएमटी के प्लेटफॉर्म से मैं इस चीज के हक में हूँ. मैं देखें, अल्लाह का डर होना चाहिए, ठीक है? अल्लाह के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर. क्या हमारे घर का बच्चा, हमारे घर की औरत या हमारे घर का मर्द इस तरह होगा तो हम क्या खामोश बैठे रहें? वो हमारे भाई हैं. आप इंसानियत के नाते सोचें. आप ये मत सोचें कि वो मुस्लिम है, आप ये सोचें कि वो इंसान है. और इस्लाम तो पूरे दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आया है. आप देखें, उनमें यहूदियों के भी हुकूक हैं, क्रिश्चियन जो है हमारे भाई उनके भी हुकूक हैं, नॉन मुस्लिम के लिए भी हुकूक हैं. इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जाओ सबको मारो पीटो काटो पीटो, इस तरह की कोई बात नहीं करता. इस्लाम बहुत ही, मैं कहती हूँ, बहुत ठंडे मिजाज का मजहब है. ला इकराहा फिद्दीन, इस मजहब में या दीन इस्लाम में सख्ती नहीं है. अगर हम इस प्लेटफॉर्म से आज ये बात कर रहे हैं, हम हक और सच की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें सब लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए. That is absolutely true. That is absolutely true. But unfortunately, ये आज के day and time में, अगर yes, majority of Palestine is an Islamic country, that is the truth. But आज जो major Islamic forces है world के, they are only not supporting with Palestine, which is, I think, the most shameful and unfortunate. जी,
बस अब हम क्या कर part सकते हैं, of हम the situation. हम बैठ के बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, हमारी डिबेट्स चलती हैं सब जगह पे, बट हमें कुछ प्रैक्टिकली हमें कुछ करना चाहिए। हमें खाली इस तरह, ठीक है हम माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ये जो डोनेशन का काम है बहुत सपोर्ट है ये, हमें इस तरह भी हम इसमें शामिल हो सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं। कल को हमें अल्लाह के आगे भी जवाब देना है कि आपने क्या किया, क्योंकि देखिए मुसलमान जो है वो एक इमारत है, लाइक अ बिल्डिंग, राइट। उसकी अगर एक ईंट को भी तकलीफ पहुंचती है या टूटती है, पूरी इमारत को फर्क पड़ता है। हम कैसे चुप बैठ सकते हैं या रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने कदम उठाया है, हम आपको फुल्ली सपोर्ट करते हैं, हमारी तरफ से भी जो भी आपको कुछ भी चीज हम हाजिर हैं आपके लिए करने के लिए, इस हमारे IMT के Thank you so प्लेटफॉर्म much. से। हाँ बहुत Thank you. बहुत शुक्रिया आपका सानिया, आप आई, आपने हमें बताया, लोगों को इस तरह अवेयरनेस मिलेगी, लोग और भी आगे आएंगे। और मैं समझती हूँ कि बस हमें देखिए, मौत तो हर इंसान को आनी है, आप चाहे कमरे में बंद होके बैठ जाएं या पब्लिक में चले जाएं, मौत तो हर जगह आ जाएगी, है ना। तो डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, बोल के लब आजाद हैं तेरे। बहुत शुक्रिया सानिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आई और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इंशाअल्लाह ताला आपका मिशन जारी रहे, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, हमें Thank you so इजाजत much. दीजिए। Thank you so much for having me, Rakshanda. It is indeed a privilege and an honor to be here. नहीं, आप हम सब के Thank लिए you. मिसाल हैं, आप आगे आई, आपको देखे हमारी यूथ आगे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया, एक दफा से फिर हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।